আপনারা বলতে পারবেন এখন কোথায় দাঁড়িয়ে রয়েছি? কারণ আশপাশে হয়তো আপনাদের চোখে পড়বে ছোট ছোট হাড়ির মতো, অনেক ছোট ছোট হাড়ির মতো। এগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা এক একটা হাড়ি এক একটা পাখির বাড়ি। শিলিগুড়ি মাটিগাড়ায় একটি আশ্রম রয়েছে। সেই আশ্রমে যেমন যারা ভবঘুরে রয়েছে তাদের থাকার জায়গা রয়েছে, ঠিক তেমনি এই আশ্রমে কিন্তু রয়েছে প্রচুর পাখির বাড়ি। এই আশ্রমের কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে এই পাখির বাড়িগুলি তৈরি করে দেওয়া হয়েছে, যেখানে দাঁড়িয়ে শহর জুড়ে বিভিন্ন দূষণের কারণে পাখি, পায়রা, কাক এই সমস্ত পাখি কিন্তু হারিয়ে যেতে বসেছে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আপনি যদি এখানে আসেন, দেখতে পারবেন মন ভরে পাখি, পায়রা, কবুতর থেকে শুরু করে চড়াই পাখি, বিভিন্ন ধরনের পাখি, এবং আশপাশের এই যে ছোট ছোট ঘরগুলি রয়েছে, এই প্রত্যেকটি ঘরে কিন্তু রয়েছে কাঠবিড়ালি। যদিও আমরা সামনে গেলে তারা দৌড়ে চলে যাচ্ছে, সেই ছবি আপনাদের সামনে দেখানো সম্ভব হয়ে উঠছে না। তবে এই জায়গায় আসলে কিন্তু মন একটা অন্যরকম অনুভূতি আপনি পাবেন। নাগাল্যান্ড স্টেট দিয়ে 200 গোল্ড মান্থলি লটারি, প্রথম পুরস্কার 1,50,00,000 গ্যারান্টেড। টিকিটের মূল্য 200 টাকা। প্রথম পুরস্কার শুধু বিক্রি হওয়া টিকিট থেকেই। আর শুধু যে পাখিদের থাকার জায়গা তাই নয়, পাশাপাশি কিন্তু রয়েছে খাওয়াও। পাখিদেরকে কিন্তু খাওয়াও দেওয়া হচ্ছে এখানে। আমরা দেখি পাখিদেরকে কিন্তু খাঁচায় বন্দি করে রাখা হয়, তবে এই জায়গায় আসলে কিন্তু আপনারা অন্যরকম একটি দৃশ্য দেখতে পাবেন। অর্থাৎ পাখিরা কিন্তু স্বইচ্ছায় এসে উড়ে বসে তাদের এই নিজেদের বাড়িতে। যেমন আমরা আমাদের বাড়িতে যাই এবং সকালবেলা হলেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাই বিভিন্ন কাজে, খাওয়া দাওয়া করে বিশ্রাম করি, আবার কাজে বেরোই, ঠিক তেমনি পাখিরা কিন্তু এখানে আসে, থাকে, খাওয়া দাওয়া করে, আবার উড়ে চলে যায়। এমনই কিন্তু দৃশ্য দেখা গেল মাটিগাড়ায় যে জৈন মন্দির রয়েছে, সেই মন্দিরে মাটিগাড়া আশ্রম। এই আশ্রমে আসলে আপনারা দেখতে পাবেন বহু ভবঘুরে মানুষ যারা রয়েছে তাদের জন্য থাকার ব্যবস্থা রয়েছে, এবং তার পাশাপাশি যেটি বিশেষ আকর্ষণ রয়েছে সেটি হলো এই পাখিদের জন্য থাকার জায়গা। খুব সুন্দর ভাবে কিন্তু আশ্রমের তরফ থেকে তৈরি করা হয়েছে পাখিদের জন্য এই থাকার জায়গাটি। আমরা একবার ঘুরে দেখে নেব এই সম্পূর্ণ জায়গা, এবং পাশাপাশি আমরা কথা বলে নেব এখানকার যারা ট্রাস্টি বোর্ডের মেম্বার রয়েছে তাদের সাথে, কারণ কোথা থেকে তাদের মাথায় এই এত সুন্দর ভাবনাটি আসলো সেটাও আমরা জানার চেষ্টা করব। এতক্ষণ যে পাখির বাড়ির ছবি আপনারা দেখছিলেন, সেই পাখির বাড়ির মালিক কিন্তু আমার পাশেই বসে রয়েছে। তার মাথা থেকেই এই যে ইউনিক আইডিয়া, সেই आइडियाটি এসেছে। আমরা কথা বলে নেব তার সাথে। सर पहले तो खबर समय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपका मतलब ये आइडिया कहाँ से आया पक्षियों के लिए घर? क्या है कि बेसिकली हम लोग जो पीड़ित लोग हैं, जो दुर्लक्षित लोग हैं, जिसको कहते हैं रंजले गांजले, तो इनके तरफ जब आप विचार करते हैं तो आपको पता चलता है कि हम लोग इन लोगों के लिए काम करें। इसी संदर्भ में हमने वो महावीर ग्राम में कुष्ठ रोग के लिए काम किया। ये ग्लोबल वार्मिंग पर मेरा बहुत बड़ा काम हुआ। मैंने 4 लाख पेड़ लगाए अभी तक। हाँ, जब मैं बेसिकली मैं प्लांटर हूँ, और मैं आज लास्ट 50 साल से टी गार्डन में काम करता रहा, तो उसमें मैंने जोर दिया है वृक्ष लगाने पर, पेड़ लगाने पर। फिर हम लोगों ने काम किया है, ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए पेड़ लगाना बहुत जरूरी था, लेकिन हमने देखा कि लोग पाक पेड़ तो काट रहे हैं, और शहरों में भी जो घर में रहते हैं वो लोग पक्षियों के लिए दाना तो दे देते हैं, लेकिन उनके रहने के लिए जगह नहीं बनाने देते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि पक्षी
हमको पर्यावरण नहीं बचाएंगे हम जब तक, तब तक हम सुखी नहीं रह सकते। जितनी बीमारियां आती है, जितनी तकलीफें आती है, ये हमने हमारा जो पर्यावरण के प्रति जो लक्ष्य होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए, काम होना चाहिए, वो उल्टा हो रहा है। हम पर्यावरण के प्रति दूषित करने में लगे हुए हैं। तो आप एक पेड़ कम से एक पेड़ है, पक्षी कम से कम दिन भर में 10 किलोमीटर ट्रैवल करता है। आप जानते होंगे कि जब भी गर्मी होती है तो आप पंखा चलाते हैं, पक्षी दिन भर में अपने पंखों से इतना जलता, ये हवा का ये करता है परिमार्जन, उससे कितना बड़ा ग्लोबल वार्मिंग कम होता है। लेकिन इसके तरफ किसका ध्यान नहीं, पेड़ काट दिए, पक्षियों का घर नहीं है। तो हम लोगों ने इस पर ध्यान दिया और हमने इस पर ये किया कि पक्षियों के लिए कैसा व्यवस्था की जाए। तो ये पक्षियों के लिए व्यवस्था हमने किया। अभी 10,000 पक्षी वहाँ आते हैं, रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं। इसको क्या हुआ कि इसकी जैसे आपने न्यूज़ ले रहे हैं, ऐसी इसकी बंगला में न्यूज़ हुई थी। और हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपति टाटा एंड सन्स जो है, उनकी कंपनी है, उसके सेक्रेटरी जो मुखोपाध्याय साहब है, वो बंगाल के हैं। तो वो रात को बंगाल की न्यूज़ देखते तो उनको एक पता चला ऐसा कि ऐसा भी काम हो सकता है। तो उनके आदमी आए थे मेरे पास, फिर हम भी बम्बई गए, उनके इंजीनियर भी यहाँ आए थे। और सिमिलर प्रोजेक्ट हमने भी, टाटा ने अभी चेंबूर में टाटा पावर कॉलोनी में बनाया है, उसका भी अगले महीने से चालू हो जाएगा। वो आप चाहे तो वो बम्बई में जाके देख सकते हैं। उन्होंने यहाँ से लिया और वो कह रहे हैं कि ये थोड़ा सा ठीक हो जाए तो हम और 8-10 जगह ऐसा प्रोजेक्ट करेंगे। तो ऐसे कई लोगों की भावना बढ़ रही है कि हमको पक्षियों को बचाना चाहिए, पक्षियों के लिए व्यवस्था करना चाहिए। और पक्षियों से का रहने से जो वातावरण का होता है, पॉजिटिव एनर्जी जो होती है, वो इतनी बेमिसाल होती है कि आप एक बार खुद वहां जाकर देखिए जहां पर हमने किया हुआ है। आपको इतना आनंद की अनुभूति महसूस होगी, आपके विचारों में परिवर्तन होगा और इससे ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत बड़ा हमको बेनिफिट मिलेगा। तो ये मेरा तो अपील है कि ये सिर्फ ऐसे नहीं करके आप घर में भी कम से कम 8-10 पक्षियों के लिए रहने के लिए व्यवस्था कीजिए। बहुत आसान है, इसके लिए कोई तकलीफ नहीं है। पक्षियों को बचाना है तो पर्यावरण के लिए 4 चीजें बहुत आवश्यक है: पक्षी, पशु, पेड़ और पानी। तो पक्षी आप के लिए आपको बहुत जरूरी है कि पेड़ पर ही आप घोंसले बनाते हो, और पेड़ बच जाएंगे तो पानी प्रिजर्व होना बहुत आसान हो जाएगा। और पेड़ों से ही आपको पशुओं के लिए जो चारा मिलना है या जो भी कुछ मिलना है, पेड़ से आपको शांति भी मिलेगी, ठंडक भी मिलेगी और पशुओं का पालन भी करने में आपको आसानी होगी। तो हमको इन 4 चीजों पर मेरे आपके माध्यम से, आपके इस न्यूज चैनल के माध्यम से मैं हर एक व्यक्ति को अपील करता हूँ कि अपने जीवन में कम से कम 4 तो वृक्ष लगाए हो और कम से कम 4 पक्षियों के लिए घोंसले बनाए, तो उनका जीवन धन्य होगा और वो सुखी होंगे, उनके परिवार भी सुखी होगा। আমরা কথা বলে নিলাম সুভাষজির সাথে। উনার যে কোথা থেকে এই ভাবনা, সেই কথাও কিন্তু আমরা জেনে নিলাম এবং সেখানে দাঁড়িয়ে আমি একটা কথা বলেছিলাম যে সেই জায়গায় গেলে কিন্তু একটা আলাদা অনুভূতি পাওয়া যাচ্ছে, একটা আলাদা শান্তি পাওয়া যাচ্ছে। তিনিও কিন্তু সেই কথাই বললেন, পাখিদের সাথে থাকলে একটা আলাদা অনুভূতি পাওয়া যায় এবং শুধু Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag Asli Commitment. পাখিদের জন্য ঘর বানানো তাই নয়, পাখিদের জন্য এই ঘর থেকে কিন্তু গ্লোবাল ওয়ার্মিং থেকেও বাঁচা যেতে পারে, এমনটাই জানালেন তিনি। স্যার, আর এর পাশাপাশি আপনি বললেন যে টাটা গ্রুপ থেকেও আপনার এই প্রজেক্ট দেখে ওরাও তৈরি করছে, তার মানে उनका प्रोजेक्ट आ भी गया है मेरे पास। হ্যাঁ, তার মানে এটা একটা বিশাল বড় প্রজেক্ট হচ্ছে, আপনার মাথা থেকে নিয়েছে। इसका डुप्लीकेट कर रहे हो, इनका ही जो डुप्लीकेट हमने कर रहा है। यहाँ से भेजा है सामान उनके लिए, ताकि उनको आइडिया नहीं थी इसकी। तो हमने हमको रिक्वेस्ट किया कि आप इनके घर का सारा टेक्नोलॉजी और सारा आप भेजिए। तो हमने कहा आपके इंजीनियर यहाँ भेज दीजिए, जो इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, लेकिन फिर भी हमने यहाँ के जो मिट्टी के हमने घरोंदे बनाए हैं पक्षियों के लिए, वो सारे यहाँ से भेजे हैं। और लोहा लक्कड़ वहां पर खरीदा है और सब हम 2 बार जाके आ गए वहां पर, वो वहां बन चुका है और अभी लगभग 8-10 दिन में चालू हो जाएगा। স্যার, আর একটা প্রশ্ন থাকছে, এত কিছু করছেন আপনি সমাজের জন্য, পরবর্তী দিনে কোনো ভাবনা রয়েছে, मतलब कुछ सोचा है इसके बाद कुछ करने के लिए? नहीं, इसके बाद में हमने देखिए सोचा क्या, चालू भी कर दिया हमने देखा है कैंसर के बाद में भयंकर बीमारी कुछ जो है डायलिसिस की, मिडिल क्लास और गरीब आदमियों के लिए डायलिसिस रेगुलर कराना एक लगभग
असंभव सा काम है और जब तक जीवित रहता है उसको डायलिसिस करना बहुत जरूरी होता है। इसलिए अभी हमने मेरे पिताजी के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में हमने मानकचंद कोम्बट मेट्रो लाइन्स में डायलिसिस सेंटर चालू किया जिसमें मुफ्त में डायलिसिस होगी। अभी 9 मशीनें बैठ चुकी है और 9 मशीनें और बढ़ाने की व्यवस्था कर रहे हैं हम लोग, ताकि कोई भी इस आपके इस न्यूज चैनल के माध्यम से जो गरीब पीड़ित परिवार है नजदीक में आसपास में, वो वहां पर अप्रोच करके अपने को फ्री डायलिसिस करवा सकता है। अभी चालू हो गया है? चालू हो गया वो। एड्रेस एक बार अगर अब बता दें। वो है आपका ज्योति नगर में है, उसका पूरी बिल्डिंग है, उसमें मानकचंद कुंभट मेट्रो डायलिसिस सिस्टम के नाम से चल रहा है वो। और आपका ट्रस्ट का नाम क्या है? ये नहीं, मैं तो जहाँ मेरा व्यक्तिगत ट्रस्ट तो भी कोई है नहीं, मैं एक बनाता हूँ उसमें सब लोग जुड़ जाते हैं, वो छोड़ करके मैं छोड़ देता हूँ। अच्छा। जैसे अपना घर बनाया हमने, अपना घर ओल्ड एज होम बनाया, महावीर ग्राम बनाया, तो बनाया उनको सौंप दिया, उसका चलो हम आगे निकलते रहे। ऐसे व्यक्तिगत हमारी किसी पर ये नहीं है कि मेरी आसक्ति नहीं है ये मेरा है करके, क्योंकि ये संस्थाएं ऐसी बननी चाहिए कि आने वाले समय में चलते रहे, हम रह न रहे, ये संस्थाएं चलती रहे अपने आप में, आउट सिस्टम में चले। আপনার নাম কি? मेरा नाम सुभाष कुंभट है। রয়েছি আমরা পাখির বাড়িতে, কথা বলে নিলাম এই পাখির বাড়ির মালিকের সাথে যে কোথা থেকে তার মাথায় এমন ধরনের বলা যেতে পারে ইউনিক একটি আইডিয়া আসলো। এবং আরো একটি বিষয় যেটা আমরা ছবি করতে করতে চোখে পড়লো, প্রত্যেকটি যে হাড়ি রয়েছে সেই হাড়িগুলোর নিচে ছোট ছোট ছিদ্র করা রয়েছে যাতে কোনোভাবে সেখানে জল না জমে, কারণ জমা জলে যাতে কোনোভাবে ডেঙ্গু বা অন্য ধরনের পোকামাকড়ের বাসা না হয় সেই জন্যও কিন্তু ব্যবস্থা করা রয়েছে। অর্থাৎ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারবেন আপনারা এই জায়গায় আসলে। মাটিগাড়া পতিরাম জোত যে জৈন মন্দির রয়েছে সেই মন্দির চত্বরেই কিন্তু আশ্রা সেবা ট্রাস্ট এবং এই আশ্রা যে আশ্রম রয়েছে সেই আশ্রমের অন্তর্গতই কিন্তু রয়েছে এই পাখির বাড়ি। আমরা সরাসরি সেই চিত্র তুলে ধরলাম আপনাদের সামনে, কথা বলে নিলাম পাখির বাড়ির মালিকের সাথেও। আপনারাও আমাদেরকে কমেন্ট করে জানাবেন এমন ধরনের ইউনিক আইডিয়া কেমন লাগলো, এবং যে আইডিয়াটি আমরা শেয়ার করলাম সেটা কিন্তু আপনারা চাইলে নিজের বাড়ির ছাদেও চেষ্টা করতেই পারেন। এই মুহূর্তে সরাসরি চিত্র খবর সময় বাংলায় আমরা তুলে ধরলাম আপনাদের সামনে। পরবর্তীতে শহরের আরো নানান আপডেট নিয়ে জড়িত থাকবো আমরা, ততক্ষণ দেখতে থাকুন খবর সময়, চোখ রাখুন খবর সময় বাংলা।